Hello viewers, welcome back to my channel. So we will continue with exercise 5.3 question number 4, in which we are having how many terms of AP must be taken to give a sum of 636. Okay, so यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी गई है वो हम जस्ट लिख देते हैं. The first term will be 9. The difference, that is A2 minus A1, is equals to 17 minus 9 is equals to 8. And we are having Sn, the sum of this particular nth term, this is 636. So we have to find the number n. Okay, so we have to use the Sn formula as Sn is equals to n divided by 2 into bracket 2a plus n minus 1 into d. So therefore 636 is equals to n divided by 2 into bracket 2 into 9 plus n minus 1 into 8. Okay, so therefore 636 is equals to n divided by 2 into bracket 9 to the 18 plus n minus 1 into 8. अभी देखो यहाँ पे से मैं 2 कॉमन निकाल के यहाँ के से कट कर सकती हूँ. तो अगर मैं इसका 2 कॉमन निकालती हूँ तो क्या बचेगा, 636 इज इक्वल्स टू n इंटू 9 प्लस 4 यहाँ पे बच जाएगा, 4 टू ज़ा 8, सो 4n माइनस 4. वो 4 को मैंने n माइनस 1 के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई. सो देयरफॉर दिस इज 636 is equals to n into 9 minus 4, 5. So this is 4n plus 5. So here we are having a quadratic equation which is 636 is equals to 4n square plus 5n. So अगर मैं 636 को उस तरफ लेके चले जाती हूँ, so we are having 0 is equals to 4n square plus 5n minus 636. So now we just have to solve this. Therefore 4n square plus 5n minus 636 is equals to 0. So minus 636 के ऐसे पार्ट बनाने हैं जिसका आंसर क्या आना चाहिए, प्लस 5. So this is 53 into 48. सो प्लस 53 माइनस 48, ये हो जाएंगे उसके पार्ट्स. सो देयरफॉर दिस इज 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48 n माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0. ओके, तो यहाँ पे n कॉमन निकलेगा. आई विल जस्ट राइट इट हियर. यहाँ पे n कॉमन निकलेगा, देयरफॉर n into bracket 4n plus 53. अभी इन दोनों में से देखो, we can take out 12 as a common. 12 4s are and 12 53s are. Okay, so minus 12 it's common. 4n plus 53 is equals to 0. So we are having 4n plus 53 and n minus 12 equals to 0. So we just compare. तो n का वैल्यू 1 हो जाएगा, माइनस 53 डिवाइड बाई 4 विच इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि n का वैल्यू हमको पॉजिटिव इंटीजर चाहिए होता है. सो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12. ओके, सो n इज इक्वल्स टू 12. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट विच इज़ एग्जाम्पल नंबर 5. द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 5. ओके, यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ दी गई है वो सिर्फ आपको वर्ड प्रॉब्लम्स ही है. सो आपको सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू राइट ऑल द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द न्यूमेरिक्स. सो फर्स्ट टर्म दैट इज़ ए इज इक्वल्स टू 5. द लास्ट टर्म मीन्स एल इज इक्वल्स टू 45. द सम ऑफ दिस मतलब एस एन इज इक्वल्स टू 400. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, सो वी हैव टू फाइंड एन and the common difference that is d. okay, so ये सारी चीज़ें गिवन है, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और एस एन. तो कौन सा फॉर्मूला आएगा,
Sn is equals to n डिवाइड बाई 2 इंटू ब्रैकेट a प्लस एल. ओके, ये वाला फॉर्मूला ही आएगा ना, a प्लस एल. देयरफॉर 400 इज इक्वल्स टू n डिवाइड बाई 2 इंटू ब्रैकेट 5 प्लस 45. So therefore 400 is equals to n divided by 2 into bracket 50. So 400 multiply by 2 divide by 50 is equals to क्या हो जाएगा n. So 500 8 5 are 40. So which implies n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16. ओके, n इज 16. तो अभी हमको क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस. ये तो आ गया. अभी कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग द जर्नल फॉर्मूला ऑफ n. ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. मतलब ए एन क्या है, लास्ट टर्म है. लास्ट टर्म हमारे पास कितना दिया है 45. देयरफॉर 45 इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी. सो ये कितना हो जाएगा 40 is equals to 15d, which implies d is equals to 40 divided by 15. So यहाँ पे 5 से चलेगा, 8 5s are 40 and 5 3s are 5 gets cancelled. The difference is 8 divided by 3. Okay, so दोनों चीज़ें मिल गए. d is equals to 8 divided by 3. So we are having two values, n is equals to 16 and d is equals to 8 divided by 3. Now move on to question number 6, in which the first and the last term of an AP is 17 and 350 respectively. Okay, so कौन सी वैल्यू दी है, a is equals to 17 and the last term l is equals to 350. If the common difference is 9, okay, so d is given 9. How many terms are there and what is their sum? Okay, so first of all we have to find the terms and the sum, that is Sn. Clear? तो जो चीज़ें दी गई है वो भी लिख दी और जो चीज़ हमको फाइंड करनी है वो भी लिख दी. तो सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास. सो l इज़ नथिंग बट लास्ट टर्म, दैट इज़ an. तो an फॉर्मूला यूज़ करके हम n फाइंड कर सकते हैं. और अगर एक बार n मिल गया तो Sn तो अपने आप ईजी मिल जाएगा. ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. देयरफॉर 350 इज इक्वल्स टू 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू 9. सो 350 minus 17 is equals to n minus 1 into 9. So this is 333 divided by 9 is equals to n minus 1. यहाँ पे ये कट होके क्या आएगा आंसर 37 is equals to n minus 1, which implies n is equals to 38. Is that clear? n की वैल्यू हमारे पास आ गई है. नाउ वी जस्ट हैव टू फाइंड S38 is equals to 38 divided by 2 into bracket first term plus last term, that is 17 plus 350. So this is 19 into 367. So the answer will be 6973. That is S38 is equals to 6973. Now move on to example number 7. Find the sum of first 22 terms of an AP in which difference d is 7 and 22nd term is 149. Okay, so difference d दिया है 7 and the 22 term is 149. Okay, so first of all we have to find the first term. तभी हमको पता चलेगा फर्स्ट टर्म क्या है और कितने फर्स्ट टर्म ही मिल जाएगा. तब उसके बाद सारी वैल्यूज़ मिल जाएगी. उसके बाद तो सम ही फाइंड करना है. सो फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे, A22 इज इक्वल्स टू A प्लस 21D इज इक्वल्स टू 149. द डिफरेंस इज गिवन
a plus 21 into 7 is equals to 149. Okay, 21 sevens are 147. So therefore a is equals to 149 minus 147. Therefore first term will be a equals to 2. ओके, अभी फर्स्ट टर्म मिल गया तो सीरीज मिल जाएगी, दैट इज़ ए पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 9 2 प्लस 9 दैट इज़ 11 11 प्लस 9 20. सो ये हो जाएगा उसका ए पी. नाउ वी हैव टू फाइंड द S22 तो क्या हो जाएगा n डिवाइड बाई 2 इंटू ब्रैकेट ए प्लस लास्ट टर्म 22 इज़ द लास्ट टर्म ना. सो डायरेक्टली हम यही फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं a प्लस एल. सो 22 डिवाइड बाई 2 इंटू ब्रैकेट फर्स्ट टर्म था 2 प्लस लास्ट टर्म दैट इज़ 149. सो दिस इज़ 11 इंटू 151. ओके, सो द आंसर विल बी 1661. So therefore sum of this 22 term is 1661. So we will just stop here. In the next video we will continue the exercise 5.3. Till then, like, share and subscribe the channel. Thank you.